weekly discussion of Bhagavad Gita. We have been meeting after a long time. The last class would have been like before 3 weeks, right? So some of us had a very amazing Kartik Yatra in Shri Jagannath Puri Dham in the association of His Holiness Radhanath Swami Maharaj. Abhijit Prabhu was there, Prathamesh Prabhu was there. So none else, nobody else from this group. So quite a lot of adventure there. We cooked also on the chula, you know. So it was nice, refreshing away from work, uh, concentrated dose of spirituality, right? From morning to evening. So it is said that in the Jagannath Puri Dham, even when you sleep, that is not called sleep. It is called samadhi. So Maharaj told that in the first lecture itself. तो आफ्टर दैट जो भी डिवोटीज आपस में बात कर रहे थे कि जा रहे हैं रूम पे समाधि लेने सो जगन्नाथ जी इज सो मर्सीफुल. Okay, so what were we discussing before we left? So this is the morning Bhagavad Gita class, and we were discussing which verse till last time we met. 1 point. No, no, no. आप पीछे रह गए, आपने कुछ मिस किया है क्लास. आप बहुत आगे चले गए माता जी. हमने क्लास में नहीं किया वो, आप शायद घर में बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं. विच इज अ गुड न्यूज. विच इज अ गुड न्यूज. हाँ, 1.28. Yes. So 1.28 and 29 also we covered in the last discussion. तो हमने डिस्कस किया था कि ओके, थोड़ा रिकैप लेते हैं अब तक आपने देखा. हाँ, that how in the Mahabharata these two armies are standing in front of each other. They are arrayed together to fight. ठीक है. The Bhagavad Gita starts with the doubt of Dhritarashtra, है ना. And he says मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय, कि ये मेरे वाले और उनके वाले, है ना. तो ये जब आए युद्ध भूमि पे तो उन्होंने क्या किया. ठीक है. और उसके पीछे बहुत सारा बैकग्राउंड है. धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र. क्यों धर्म क्षेत्र कहा जाता है, कुरुक्षेत्र क्यों कहा जाता है, धृतराष्ट्र ने ऐसा प्रश्न क्यों पूछना चाहिए कि जब रेस्टोरेंट में हम और आप गए और खाने की प्लेट सामने आई तो उसके बाद में हमने क्या किया. ऐसा प्रश्न नहीं करते ना, है ना. स्टूपिड क्वेश्चन होता है ये. बट धृतराष्ट्र आस्किंग दिस क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन इज द नो, ये प्रश्न जो है सूत्रधार बना है पूरी भगवत गीता का. बिकॉज एवरीथिंग द भगवत गीता हैज बीन नरेटेड after this question, right? So acharyas have given a lot of explanation and we had covered some of it. Okay, so the devotees who have come, I mean who are not part of this group earlier, those lecture recordings are there on a YouTube channel. I have uploaded them. So in your leisure time, जब कुछ और करने को नहीं हो, जीवन फालतू जा रहा हो, तो उस फालतू काम में ये एक फालतू काम ऐड कर सकते हैं आप. यू कैन हियर दोज क्लासेस, सो यू विल बी लाइक अप टू द स्पीड. हाँ, आई प्रथमेश विल सेंड. तो 1.1 से लेके 1.29 तक का वहाँ पे डिस्कशन हमने अपलोड किया है, जो हमने इस क्लास में डिस्कस किया है. हम्म? तो 1.28 and 29. Anyway, so okay, before that, so Dhritarashtra asks his questions, and then Duryodhan uh, exhibits his diplomacy. Duryodhan is saying, talking to his marshal generals and commander in chiefs, and all these people in the battle. And उसका कॉन्वर्सेशन है जो संजय नरेट करते हैं. बाद में संजय नरेट करते हैं पांडवों के क्या क्या, पांडवों की तरफ से कौन कौन लड़ रहा है, उनके क्या स्ट्रेंथ्स हैं, राइट. सो वी आल्सो डिस्कस द साइंस ऑफ द विक्ट्री ऑफ द पांडवास, राइट. एंड आई हैड गिवन यू स्पेसिफिक वर्सेस, ये वर्ष से लेके ये वर्ष तक द साइंस आर डिस्क्राइब. ठीक है. सो देयर वर like this Bhagavad Gita first chapter is divided into 3 to 4 sections. Okay. Okay, let me just repeat for the benefit of the new audience today.
So the first chapter is divided into two sections. First section is called introduction, and second section is called Arjuna's 5 reasons why he should not fight this war. So we are at the starting of the second section right now. ठीक है, we have just inaugurated that section from verse number 1.28 in the last to last discussion. ठीक है, तो फर्स्ट सेक्शन है इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन का के 3 सबसेक्शंस हैं. इफ यू वांट टू नोट डाउन, प्लीज नोट डाउन इन योर भगवत गीता. So in the introduction section, first subsection is verse number 1 to 11. That is called preparation of war. All the verses which are described there are called the section of preparation of war. ठीक है, and then 1.1 to 1.11. Then subsection 2 is signs of the victory of the Pandavas. That is verse number 1.12 to 1.20. Signs of the victory of the Pandavas. 1.12 to 1.20. Then third subsection is Krishna as Bhakta Vatsal. Third subsection is Krishna as Bhakta Vatsal, and that is from verse number 1.21 to 1.27. ठीक है, 1.21 to 1.27. So like this, there are 3 subsections, and these 3 subsections collectively are called the introduction to Bhagavad Gita. ठीक है, from 1.1 to 1.27. अभी इसके बाद में सेकंड सेक्शन स्टार्ट होता है भगवद गीता का. दैट इज Arjuna's reasons not to fight the war. Okay, that is from 1.28 to 1.46, remaining chapter. तो उसमें 5 रीजंस अर्जुन बताते हैं. ओके, सो उसके भी सेक्शंस हैं, वो भी वर्स नंबर्स की कैटेगरीज हैं. सो फर्स्ट रीजन अर्जुना टेल्स इज कंपैशन. दैट इज वर्स नंबर 1.28 टू 1.30. लास्ट टाइम ने बताया था. ठीक है, फर्स्ट रीजन इज कंपैशन फ्रॉम 1.28 to 1.30. सेकंड इज एंजॉयमेंट. ओके, और rather the lack of enjoyment. If I fight this war, I kill my near and dear ones. What is the enjoyment? Because the enjoyment has to be, well, the enjoyment is received in connection with the relatives, and I will not have any relatives left. So what is the enjoyment, right? So that is 1.31 to 1.35. Yes. Then third is fear of sinful reaction. If I kill them, sin will come to me. So these reasons are given from 1.36 to 1.38, 3 verses. ठीक है, fear of sinful reactions. 1.36 to 38. Then destruction of family traditions. If the families are destroyed like this, then the traditions will go for a toss. Our forefathers will not be fed. Our culture will be destroyed. The upcoming generations will not have anything with them in terms of culture. So those reasons are given in 1.39 to 43. हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे. आप सिर्फ अभी ये जस्ट टॉपिक नोट कर लो. डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशंस 1.39 to 1.43. And then fifth reason for Arjuna's not fighting is indecision. And that reason doesn't come in the first chapter, that comes in the second chapter. Okay, that is verse number 2.6. ठीक है, indecision 2.6. इसके बाद में फिर कृष्ण लताड़ लगाना चालू करते हैं अर्जुन को कि तुम्हारा बहुत हो गया. हाँ, 2.6 फॉर indecision. ठीक है. Okay, so these are the sections. Now there was a homework. The homework was to memorize the Srimad Bhagavatam verse which is quoted in the purport of 1.28. Prabhupada quotes this verse. Anyone who memorized this verse?
यस्यास्ति भक्तिर्भगवती यकिंचन सर्वैर्गुणैर्तत्र समाहते सुराः हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेना सति धावतो बहिः. We discussed quite a lot on this verse. याद है किसी को? किस किस को याद है? हाथ उठाइए. मनीष प्रभु, याद है आपको? वेट अ मिनट, एनीवन एल्स? एनीवन? माता जी को इतना अचंभा हो रहा है, बोले ये कब हो गया? ये कैसे हो गया? मैंने तो पूरी कोशिश की थी कि याद ना हो. हम्म. एनीवन एल्स? नोबडी एल्स? मनीष प्रभु, प्लीज रिसाइट द वर्स. वर्स याद नहीं है? हाँ. अर्थ याद है? ओके ठीक है, अर्थ बताइए. जो जो व्यक्ति अविचल रहता है किसी भी भाव से सुख दुख से, वो भगवान की भक्ति ज्यादा अच्छे से कर सकता है. ऐसा अर्थ नहीं है इस श्लोक का. आपने अपना परपोर्ट दे दिया जाए स्वयं का. मनीष प्रभु उवाच. दैट इज नॉट द मीनिंग. So the meaning is given in the purport. Okay, please read. Abhishek Prabhu, do you have the shlok open with you? Bhaskar Prabhu, you have it open? 1.28 का परपोर्ट में लास्ट में एक श्लोक दिया है प्रभुपाद ने. प्लीज रीड द ट्रांसलेशन. I mean, the meaning. Just below the shloka is a translation of the shloka. First, in one, हाँ, yes. one who has unflinching devotion for the personality of the Godhead has all the good qualities of the demigods. Hmm. But one who is not a devotee of the Lord has only material qualifications that are of little value. Hmm. This is because he is hovering on the mental plane and is certain to be attracted by the glaring material energy. Hmm. जो भगवान का भक्त है उसमें स्वतः ही सारे सद्गुण आ जाते हैं. कैसे सद्गुण? देवताओं जैसे सद्गुण. और जो भगवान का भक्त नहीं है उसका क्या होता है? उसमें गुण होकर भी वो दुर्गुणी कहलाता है. क्यों? वेरी इंपॉर्टेंट वर्स. हाँ, वेरी. एंड वी डिस्कस क्वाइट अ लॉट ऑन दिस. आई विल नॉट डिस्कस इट टुडे, जस्ट दिस टू मेक यू यू नो कनेक्ट टू दैट क्लास वंस अगेन एंड प्रोसीड फ्रॉम देयर. जो भगवान का भक्त नहीं है उसमें चाहे कितने भी अच्छे गुण हों, होता है ना, संसार में बहुत सारे लोग देखते हैं कितने सद्गुणी लोग होते हैं, है ना, पर भक्त नहीं है यदि, तो हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथे ना सती धावतो बही. क्योंकि वो मन के रथ के ऊपर दौड़ रहा है. और मन के रथ के ऊपर दौड़ने वाले क्या होता है? he gets, see it's written, because he's hovering on the mental plane and is certain to be attracted by the glaring material energy. वो माया के प्रभाव में कब पड़ जाएगा उसका कुछ पता नहीं है. आज सद्गुणी है, कल क्या करेगा पता नहीं. कल क्या क्या दुर्गुण अपना जो कभी देखा नहीं उसमें वैसा दुर्गुण भी वो दिखा देगा. क्यों? क्योंकि वो भगवान का भक्त नहीं है. उसका मन जो है वो भगवान के चरणों के प्रति आसक्त नहीं है. आसक्त कहाँ है? मटेरियल एनर्जी मतलब क्या? माया मतलब क्या? किधर है माया? आजू बाजू मत देखो. हाँ. अच्छा, परिवार में माया है इसलिए आप अकेले आते. परिवार में माया नहीं है. माया कहाँ है? प्रसिद्धि माया है. तो कुछ अच्छा नहीं करना चाहिए जिससे कुछ अच्छा हमको नाम मिले. When will I get attracted to Maya? Maya किसी भी when we leave the Krishna, then When we leave Krishna. ओके, कृष्ण की सेवा में नहीं है तो माया की सेवा में है. ओके, तो ऐसा कब होता है? प्रैक्टिकली कैसा कब होता है ऐसा? तो माया की सेवा कर रहे हैं हम सब, जब कर रहे हैं कृष्ण, मतलब कथा सुन रहे हैं, हम्म. कृष्ण है, उस वक्त हम कृष्ण की सेवा में हैं. ओके.
घर पे हैं तो माया में है। ऐसा भी काम कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं, हाँ, भगवान की सेवा ओके कर रहे हैं। ओके। सो what is it that I can do for the Lord and what is it that I can do for me which puts me in Maya? Huh? We have to control our senses. Mataji is very close. This is the answer. कब हम माया के प्रभाव में पड़ते हैं? सेंसेस। ये जो माया है किधर है? ये ये हमारी इंद्रियां जो हैं, दिस ये इंद्रियां परिभाषित करती हैं। आवर सेंसेस डिफाइन वेदर आई एम इंडल्ज इन माया और आई एम इंडल्ज इन कृष्णा। सिंपल है। मनोरथे नासति धावतो बहि ही, मन के रथ के ऊपर मैं दौड़ रहा हूं, है ना? क्यों? क्योंकि मुझे अपनी इंद्रियों को तृप्त करना है। what are we doing from morning, the time we wake up, till the time we go for sleep in the night? What do? In one line, we run for our sense gratification. That's it, isn't it? खाना है, पीना है, सोना है, किसी से बात करना है, ये सब किसके लिए करते हैं हम? मेरे इंद्रियों को सुख देने के लिए करता हूं मैं। तो इंद्रियों को सुख देने के लिए यदि मैं कर रहा हूं मेरा जीवन यापन, जीवन का जो भी मेरा समय में बिता रहा हूं, दैट मीन्स आई एम सदगुणी और दुर्गुणी। यदि मैं अपने इंद्रियों को तृप्त करने के लिए कार्य कर रहा हूं, तो वो सदगुण है कि दुर्गुण है? दिस इटसेल्फ इज अ दुर्गुण। क्यों? क्योंकि भगवान की भक्ति नहीं है। क्योंकि ये मन को और मेरी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। वो आज सदगुण का व्यवहार है, परंतु कल दुर्गुण भी बन सकता है। राइट? वी डिस्कस द एग्जांपल ऑफ कंसा, है ना? कंस अपनी बहन के लिए सारथी बना था। जब देवकी, माता देवकी का जब विवाह हुआ था वसुदेव के साथ, तो वो रथ हाँक रहा था। इतना उसने लोली, बीइंग अ सारथी इज नॉट अ हाई फाई जॉब। नाम बहुत अच्छा लगता है सुनने में, सारथी या संस्कृत में, बट हिंदी में, इंग्लिश में बोला तो ड्राइवर, है ना? तो ड्राइवर का काम, वो एक राजकुमार है कंस। उसने अपना राजपद और अपना अभिमान त्याग कर अपनी बहन का रथ हाँकने के लिए बैठा कि देवकी, मैं आपको आपका रथ लेकर जाऊंगा, देवकी वसुदेव को, उनके विवाह के बाद में, है ना? परंतु कंस भगवान का भक्त नहीं है। तो जैसे ही आकाशवाणी हुई कि ये देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा वध करेगा, अब क्या हो गया? वही अभी औकात सामने आ गई। क्योंकि मेरे इंद्र तृप्ति में बाधा बनेगी देवकी, तो वो बहन जिसके लिए रथ हाँक रहा था, उसी बहन के बाल पकड़कर उसको वहीं रथ पर मार डालने की चेष्टा कंस ने की। सद्गुण या दुर्गुण? तो वो स्टार्टिंग से वो दुर्गुण ही था, सद्गुणी था ही नहीं कभी। एंड वी डिस्कस सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ द वर्ल्ड, मॉडर्न वर्ल्ड आल्सो, राइट? सो मेनी पीपल rise up to the top, display so many good qualities, and they fall down because of their sense gratification. Presidents, Tiger Woods, Bill Clinton, and so many, like खाली अमेरिका में ही नहीं होते ऐसे, भारत में भी होते हैं। राइट? ओके, सो दिस इज, प्लीज मेमोराइज दिस वर्स। ठीक है? आई विल आस्क इन द नेक्स्ट क्लास वंस अगेन। ओके, सो नेक्स्ट इज हरे कृष्णा, प्लीज कम। So Prabhupada quotes this verse as a fact that Arjuna is showing compassion. ठीक है? तो प्रभुपाद ने पहले उसको प्रेज किया है कि एक भक्त को ऐसा होना चाहिए कि बहुत करुणामयी होना चाहिए, है ना? भक्त बनते हैं तो ये क्वालिटीज हमारे अंदर आ जाती हैं, क्योंकि हम श्रवण करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं, है ना? तो अच्छे गुण भक्तों में धीरे धीरे आ जाते हैं। उसका उदाहरण भी है शास्त्रों में, है ना? रत्नाकर, मृगारी, वाल्मीकि, वाल्य गौड़ थे पहले, राक्षस बाद में,
है ना। तो ये सब सद्गुण उनमें आ गए। तो ये कंपैशन को प्रभुपाद ने पहले 1.28 में बहुत प्रेज किया है कि ये करुणा होनी चाहिए, ये अच्छा गुण होता है, परंतु बाद में 1.2930 में फिर प्रभुपाद उसको, उसका दूसरा पहलू बता रहे हैं हमें। सो विल रीड द the word to word meaning and translation purport of 1.30। मैं 1.29 का पहले ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ, 28 एंड 29 का, बाद में उसमें 30 में जाएंगे। अर्जुना सेड, 28 का ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूँ मैं। Arjuna said, "My dear Krishna, seeing my friends and relatives present before me in such a fighting spirit, I feel the limbs of my body quivering and my mouth drying up." 1.29, my whole body is trembling, my hair is standing on end, my bow Gandiva is slipping from my hand, and my skin is burning. 1.30, I am now unable to stand here any longer. I am forgetting myself and my mind is reeling. I see only causes of misfortune. O Krishna, killer of the Keshi demon. Okay, can somebody read the purport, please, from Mataji's side? Yes. हो रही थी। भौतिक वस्तुओं के प्रति आध्यात्मिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है। भयं द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात्। ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन एक व्यक्ति में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त होता है। अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल दुखदायी पराजय की प्रतीति हो रही थी। वह शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होगा। निमित्तानि विपरीतानि शब्द महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है तो वह सोचता है कि मैं यहाँ क्यों हूँ। प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है, किसी को भी परमात्मा में रुचि नहीं होती। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिख रहा है। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या कृष्ण में निहित है। बद्धजीव उसे भूल जाता है, इसलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसके शोक का कारण बन सकती है। Thank you, Mataji. Okay, so uh, now you go into your Bhagavad Gita, verse number 28 to 46, and count the number of times Arjuna has spoken the words Kula and Swajana. ये दो शब्द का टोटल काउंट कितना है? 28 to 46. How many times Arjuna has spoken these two words, Kula and Swajana? नहीं, आप संस्कृत देखिए ना वर्ड्स, संस्कृत वर्ड्स, जस्ट लुक एट द संस्कृत वर्ड्स एंड काउंट. 10 times. Okay, total 13 times. Anyone wants to challenge them?
ओके, स्टॉप. सो सी, आई मीन हमको एग्जैक्ट काउंट निकाल के कुछ मेडल नहीं लेना है. द पॉइंट इज 28 to 46, ये सब वर्सेस में 13 टाइम्स अर्जुना इज मेंशनिंग दैट आई हैव टू फाइट विद whom, with my family members, swajana or kul, my dynasty, right? And he's reasoning, he's giving the reason of compassion. ठीक है. सो मतलब करुणा. तो करुणा करने के लिए जरूरी नहीं है कि स्वजन या हमारे कुल वाले ही चाहिए. करुणा तो सब पे होनी चाहिए, राइट? सो दैट इज हाउ आचार्य हैज डिफीट दिस अर्जुना's आर्गुमेंट, कि अर्जुन का जो ये करुणा है या उसका वीकनेस है, द वीकनेस ऑफ हिज हार्ट, दैट ही डजंट वांट टू फेस हिज फैमिली, ही डजंट वांट टू किल हिज फैमिली. So not killing is a virtue, is a good thing, right? However, what is the reason of not killing? Oh, I will not kill my family members, but somebody else, it अगर कोई और होता उधर तो मार देता. तो ये करुणा है क्या? नहीं है. दिस इज नॉट कंपैशन. ठीक है. बिकॉज या इफ आई किल देम आई गेट द किंगडम, बट आई लूज देम, राइट? But if I don't fight, so if I keep them, my family member, then I lose the kingdom. है ना? तो अर्जुन इज गेटिंग bewildered like this. और वो आगे रीजंस हमको समझ में आएंगे. इनडिसीजन आएगा, sinful reactions. Arjuna will quote the perfect शास्त्रिक examples. शास्त्रों में ऐसा कहा है. कृष्णा, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये शास्त्रोक्त बात है. एंड he will go to those verses later. ठीक है. But point is what? Arjuna is fearing away, not is not he's trying to avoid the fight because his family is in front of him. ठीक है. So that's why acharyas call it a misplaced compassion. It is not the right compassion, it is a misplaced compassion. ठीक है. So examples हमने, we had touched upon this topic in our previous classes but not in detail. So today, and because this is the last verse, 30th verse of this section, compassion, so we'll close on this. ठीक है. तो please quote examples from scriptures or from worldly life, misplaced versus right compassion. What is that? What are the examples and what is the result of them? Example of misplaced compassion from scriptures. चलो पहले scriptures लेते हैं. शास्त्रिक उदाहरण. पॉजिटिव थिंकर में आता है एक उदाहरण उसका. सबका पॉजिटिव थिंकर हो चुका है इधर, है ना? हाँ हाँ. करने कुछ गया, हो कुछ और ही गया. भरत महाराज, वेरी गुड. भरत महाराज एग्जाम्पल. व्हाट इज एग्जाम्पल? प्रथमेश प्रभु प्लीज कोट. सब राजा का राजपाट छोड़ के भगवत भक्ति प्राप्त करने के लिए जंगल में चले गए. और वहाँ पे वो भक्ति करते करते एक दिन गंडकी नदी से वो एक हिरण का बच्चा बहता हुआ, तो उसके रिलेटेड कंपैशन आया, पाला, उसके प्रति उनको आकर्षण हो गया, आसक्ति हो गई. उसके बाद में वो जब बड़ा हो गया तो एक दिन वो गायब हो गए. उसको ढूंढते ढूंढते वो उन्होंने शरीर त्याग दिया. सो भरत महाराज, इट वाज कवर्ड राइट इन द पॉजिटिव थिंकर. तो लेकिन प्रभु, हिरण को बचाना, मरता हुआ छोटा सा बच्चा, गलत काम है, हैं? मरने देना था उसको, फिर अच्छा काम है. तो मिसप्लेस कंपैशन कैसे हुआ है? हाँ, तो इसका मतलब नहीं बचाना था, क्योंकि बचाएंगे तो आसक्ति हो जाएगी. हाँ,
सी बचा लिया उसको, उसके बाद में अब हिरन को घर में रख के कुछ फायदा नहीं है ना। गॉड हैज अ प्लान फॉर इट. You were in that situation. Okay, God, you know, somehow arranged that situation to be unfolded in front of your eyes. So you do your duty. That is duty. But then वो उसको 3 टाइम घास भी खिलानी है, फिर उसको नहलाना भी है, फिर उसको. सो भरत महाराज gave up his queens, his sons, daughters, entire kingdom. This land is called Bharatvarsh after his name, Bharat. He was the king of the entire planet Earth. ठीक है. सन ऑफ ऋषभ देव. क्या क्या छोड़ के आए. In his prime youth, he relinquished his throne, gave it up to his sons. You now you run the business, and I will go and perfect my life. That was the culture in ancient India. सही समय पर छोड़ देते थे कि अभी हमने ये सब कर लिया, अभी भक्ति करेंगे पूरा. ऐसा नहीं कि पहले नहीं करते थे, पहले भी भक्ति करते थे, फिर बाद में कॉन्सेंट्रेटेड भक्ति करते थे 24 आवर्स. वानप्रस्थ, राइट. सो ही टुक द वानप्रस्थ, ही वेंट टू द जंगल. छोटी सी कुटिया बनाई. पूरे पृथ्वी के राजा जंगल में कुटिया बना के रह रहे हैं, यज्ञाहुति कर रहे हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, अकेले रह रहे हैं. और हिरण का बच्चा दिखा मरता हुआ, उसको बचा के ले आए आश्रम में. अभी नाउ हिज डिवोशनल सर्विस गेटिंग कॉम्प्रोमाइज बिकॉज ऑफ दिस बेबी डियर. अरे, बिकॉज इट्स वेरी क्यूट ना, वेरी स्वीट, वेरी क्यूट पप्पी. छोटे छोटे बच्चे, जानवर के, पक्षियों के, मनुष्यों के भी बहुत अच्छे लगते हैं, है ना. एंड बट हीज concentration was diverted towards the baby deer, and then slowly he became neglectful. He is doing the yajna and looking at the deer. Ah, it's very cute, very nice, है ना. The deer would come and lick his feet, his face. He would feel pleasure. And बाद में हिरण का क्या है, तो थोड़े दिनों में बड़ा हुआ और जंगल में दूर दूर तक घूमने लगा. और ये पीछे पीछे घूमते घूमते ढूंढते, मेरा मेरा हिरन किधर गया. हिरन अपने बच्चों को छोड़ के आए और हिरन में फंस गए, है ना. वेयर इज माई डियर. एंड देन ही फेल इनटू अ डिच and left his body. And then what is the next body he got? A deer's body. And then in the deer's body, he realized what a mishap he has done. How did he land here? Actually, scriptures tell that he was already at the stage of the bhav. Bhav is the second last stage in the perfection of the consciousness. भाव, एंड उसके बाद में सीधा प्रेम आता है. अदो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम. दीज आर द 9 स्टेजेस ऑफ डिवोशनल सर्विस. भक्ति योग के ये 9 स्टेजेस हैं. स्टेज को क्या कहते हैं हिंदी में? व्हाटएवर यू अंडरस्टूड. स्तर, 9 स्तर हैं. तो वी हैव टू राइज from these all these levels and reach to the highest level, that is प्रेमा भक्ति, है ना. भरत महाराज भाव के स्तर पे थे, वो आसान नहीं होता. अधिकतर हमारा गाड़ी कहां तक घूमता है? अनर्थ निवृत्ति तक. अनर्थ निवृत्ति, अदो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति. इनिशियल 4 स्टेजेस, it takes lifetimes to cross these 4 स्टेजेस. अनर्थ निवृत्ति के बाद में निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव बने. तो निष्ठा, है ना. निष्ठा का सिम्टम कभी कभी हमको दिखता है. हाँ, एवरी संडे वी आर गोइंग, एटलीस्ट एवरी संडे वी आर गोइंग फॉर चैंटिंग एंड द मॉर्निंग प्रोग्राम इन द टेम्पल. सम डिवोटीज गो एवरी डे. निष्ठा, दैट इज निष्ठा स्टेज, है ना. कमिंग टू द क्लास एवरी वीक विदाउट मिसिंग इज निष्ठा टुवर्ड्स द क्लास, नॉट टुवर्ड्स द चैंटिंग और टुवर्ड्स ऑफरिंग, है ना. So there are different aspects of devotion. There are different activities we do. In every activity we need निष्ठा, right? So इस प्रकार से भगवान के चरणों के प्रति जब निष्ठा प्राप्त हो, निष्ठा मीन्स डिटर्मिनेशन, राइट, कि ये करना है चाहे दुनिया इधर से उधर हो. जैसे मायापुर का एक आप गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा एक वीडियो. मायापुर, वहां पे हर साल बाढ़ आती ही आती है मंदिर के अंदर तक. और मंदिर थोड़ा नीचा है, तो टेम्पल हॉल में पानी भर जाता है यहाँ यहाँ तक.
सुबह 4:30 बजे भक्त फिर भी मंगल आरती में आते हैं, इधर तक नाव लेके आते हैं टेम्पल हॉल में। और नरसिंह नरसिंह देव का जो ऑल्टर है, सब लोग मायापुर, सब लोग नहीं गए बट मोस्ट ऑफ यू हैव बीन टू मायापुर, कम ऑन, यू हैव नॉट बीन टू मायापुर, व्हाट शुड आई से? इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। ओके, probably we'll have some मायापुर यात्रा sometime। तो नरसिंह देव का मंदिर नीचे है, राधा माधव का ऊपर है। राधा माधव एंड सखीज, राइट, दैट्स द फोटो। तो बहुत ऊंचा ऑल्टर है वो, मतलब हमारी हाइट से भी ऊपर है। तो वहां तक पानी नहीं जाता है, परंतु नरसिंह देव के ऑल्टर पे तो हो जाता है, यहाँ तक आ जाता है नरसिंह देव के भी, है ना। तो उसमें पुजारी भी नाव लेके जाते हैं और भगवान का अलंकार करते हैं, ड्रेस करते हैं, और आरती होता है। दैट इज निष्ठा, राइट। इट इज रेनिंग and it is flooded, the temple hall is full of water, but we are still going for मंगल आरती। ऐसा भी नहीं कह रहे कपड़े तो गंदे ही होने हैं, भीग नहीं है तो साफ कपड़े भी पहनने की क्या जरूरत है, नहाने की क्या जरूरत है। नहा के 13-12 तिलक लगा के अच्छे कपड़े पहन के फिर जाते हैं आरती में। दैट इज निष्ठा। एनीवे, भरत महाराज भाव के स्तर पे थे, वहां से उनको फॉल डाउन हुआ। हाँ, वाई? मिसप्लेस्ड कंपैशन, करुणा थी, वो गलत डायरेक्शन में चली गई। ओके, एनी अदर एग्जांपल? हाँ। रोड पे जैसे जो रहते हैं ना गणपति का ऐसे हम्म। सार्वजनिक, हम्म। तो वहां पे क्या होता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो करते वगैरह तो पब या बियर बार, तो ये ऐसा मिसयूज भी होता है, मिसयूज होता है, यस। हम्म। तो हमें नहीं पता कि वो क्या। यस, दैट इज कॉल्ड डोनेशन, चैरिटी इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस। तमोगुण का दान, जो आपको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है उस दान का, है ना, तमोगुणी दान। ओके, दैट इज मिसप्लेस्ड कंपैशन। कंपैशन, करुणा क्या हुआ, आपने करुणा करके दिया पैसा उनको। हाँ, गरीब को। गणपति वाला फिट नहीं होता उसमें, बट हाँ, निर्धन लोगों को, बेगर्स, वी गिव टू बेगर। हाँ। भगवान के लिए दान कर रहे तो सब पैसे होता है। बट वो कंपैशन नहीं हुआ, भगवान के लिए दान करना इज नॉट आउट ऑफ कंपैशन, सो रॉन्ग एग्जांपल दैट वे। हाँ, कंपैशन। एनी अदर एग्जांपल? एनिमल राइट एक्टिविज्म, फेमिनिज्म, ये बहुत सारे इज्म्स हैं। नेशनलिज्म, और क्या, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, all these isms deal with only a small part of the problem of the humanity, right? तो पशुओं को बचाना है मरने से, पशुओं को बचाना है, लेकिन डिनर में KFC, मैकडी, ये सब। एक दो उदाहरण हमने दिए थे पहले भी इसके, राइट। I had given this example of my colleague. No, they are very proudly, they are a group of individuals, they collect money from others and they also contribute, and they go to the slums and these poor schools। वहां जाके क्या करते हैं उस पैसे से? बहुत सारे मैकडोनल्ड्स के बर्गर खरीद के लेके जाते हैं, पिज्जा हट के पिज्जा लेके जाते हैं। उनको मिलता नहीं बेचारों को, उनको भी एक्सपीरियंस उनको। अरे वो किसी को खाना ही नहीं चाहिए, तुम उनको क्यों खिला रहे हो? अच्छा है वो नहीं खा रहे हो, पाप कम हो रहा है उनका, इजंट इट? हमें ही नहीं खाना चाहिए, सच बैड प्लेसेस टू ईट बट दे विल डू। ये क्या है? मिसप्लेस्ड कंपैशन। सो बिकॉज ऑफ दिस कंपैशन व्हाट आर दे डूइंग? ये जो रेस्टोरेंट्स का जो सिन है, जो पाप है, वो भी उनके माथे पर डाल रहे हैं अननोइंगली, राइट। रेस्टोरेंट ईटिंग इज sinful eating, right? Because so many animals, the meat will be cooked there, or unclean habits wale people, they will cook, right? So their karma will also go into the food. So misplaced compassion. Okay, I have a wound, and I go to the doctor,
डॉक्टर सेज सर्जरी करना पड़ेगा, है ना? अरे डॉक्टर तुम्हारे पास में आया दर्द कम करने के लिए आया, तुम चाकू से चीर रहे हो मेरी स्किन को और नो ऑपरेशन कर रहे हो, दर्द बढ़ा रहे हो। दैट इज नॉट राइट, नो नो, यू आर नॉट द राइट डॉक्टर। क्या करना चाहिए डॉक्टर ने? उसको फूंक मार के सहलाना चाहिए बस। व्हाट इज दैट? सो आई एम अटैच्ड टू माय बॉडी एंड आई डोंट वांट पेन, एंड आई से दैट नो नो, डोंट ऑपरेट मी, डोंट ऑपरेट मी। दैट इज मिसप्लेस्ड कंपैशन, my misplaced compassion on my body. Because unless it is treated, unless it is cut and the pus is cleared and it will not heal. So because of my misplaced compassion, my body, maybe today it's a small wound, today tomorrow I'll have to just have the hand itself will have to be amputated, है ना? But the doctor, what is he doing? Surgeon, वो पेन दे रहा है, इंजेक्शन दे रहा है, but that is a right compassion because it is for a higher purpose, right? Okay. Temporary inconvenience for permanent convenience, right? Higher purpose. So शास्त्रास में दो शब्द आते हैं, श्रेयस एंड प्रेयस। श्रेयस मीन्स लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव एंड प्रेयस मीन्स शॉर्ट टर्म प्रॉफिट। ठीक है? सो वी नीड टू ऑलवेज प्रायोरिटाइज श्रेयस above prayers. Look at the long term picture and focus on the long term goals for the permanent happiness. And for that permanent happiness, if I have to give up my temporary happiness, my temporary sense gratification, that is fine, that is okay, that is the right compassion, okay, for oneself and for others also, right? So what should we do for the beggars? We should not give them money, we should give them food. If we give them food, we should, if we give them food, today we gave food, tomorrow we'll give, but what about day after, what about next month? ये क्या होगा? Right? We will not be there. So what we give? Prasadam. Prasadam connects them to Krishna, because prasadam is the uchist of Krishna. Their spiritual life has started just by touching or bowing down to or eating prasadam, right? We want to do good in the world, right? Let's make this world a better place. How do we do it? Tree plantation and river cleaning, teaching kids for free. So बहुत सारे कर रहे हैं, है ना? But Prabhupada has one simple formula: distribute Bhagavad Gita. That will solve all problems, isn't it? Because सब कुछ करते हुए भी हिप्पीज क्यों बन गए अमेरिका में? Why did people become hippies in the 80s, 70s? है ना? At the time when Vietnam war was going on, and after that, educated, good family, the boys and girls from good families, millionaire families, they are just lying on the street taking drugs. American government, even today, they are ready to spend billions of dollars to eradicate drugs, to solve this problem of drug addiction and misdirected youth. Prabhupada gave, you give that money to us, हम सबको सब सही कर देंगे. And Prabhupada proved it. Prabhupada proved it. But nobody wants to support the spiritual mission in that manner, right? So when we distribute Prabhupada books, and we are solving all problems of society, isn't it? Because once the soul, the jiva, connects to Krishna, then he knows what is the right and what is wrong. ठीक है? उसमें फिर कोई डाउट नहीं रहता. ठीक है? Another example, misplaced compassion. This is a little bit serious. माता पिता घर से बाहर गए,
बड़े भैया बड़ी बहन को बोला कि छोटे बच्चे का ध्यान रखना, उसको बुखार है, प्लीज टेक केयर ऑफ हिम, हमको जरूरी काम से जाना है। ठीक है, माता पिता चले गए। अभी छोटा भाई रो रहा है, मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है। बड़ी बहन सोच रही है अरे भूख लगी है तो कुछ दिया खाने को जो भी अवेलेबल था। नहीं ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। ये बहुत रो रहा है बच्चा, छोटा भाई रो रहा है, तो क्या ध्येय क्या है उसका? रोना चुप कराना चाहिए। ठीक है, सो करुणा है, कंपैशन है। हम्म। एंड देन दिस बॉय आज कि मुझे तो पकोड़ा खाना है ना? तो बड़ी बहन पकोड़े बना के खिलाती है उसको, और वो बच्चा पकोड़ा खाता है, और क्या होता है उसको? और फीवर उसको ज्यादा बढ़ जाता है ना? और ज्यादा उसको कॉम्प्लिकेट हो जाता है बीमारी। माता पिता घर में आए और वो बड़ी बहन को डांटा, अरे तुमने ऐसा कैसे कर दिया उसको, ये तेल के पकोड़े क्यों खिलाए? और वो रो रहा था, उसको रोना चुप कराना था। रोना चुप कराना था, दैट इज शॉर्ट टर्म गोल। व्हाट इज लॉन्ग टर्म? उसका उसका बुखार है, उसको नहीं देना है अभी पकोड़े, वो ठीक हो जाएगा उसके बाद में देना है। राइट? व्हाट डू वी डू इन दिस वर्ल्ड? वी ट्राई टू गिव पकोड़ाज टू sick people when we are giving them money, when we are giving them education, when we are giving them food, planting trees or whatever, right? अन्ना हजारे का मोर्चा, केजरीवाल का प्रोटेस्ट, जो भी, all these social causes are meant for what? To increase the sense gratification of the population. Leaders are also doing that, right? There was a petition in Bangalore which was filed. What was the petition? कि जो मूवी सिनेमा हॉल में पॉपकॉर्न और फूड और ये जो भी मिलता है इतना महंगा मिलता है कि बेचारा आम आदमी अफोर्ड ही नहीं कर सकता। उसके ऊपर रेगुलेशन लगाना चाहिए, उसको सस्ता करना चाहिए, ताकि ताकि वो अभी आम आदमी परिवार वाला उनको ले जाके वहां पे जाके मूवी देख सके और खरीद के खा सके। व्हाट इज दैट? है ना? अपेरेंटली बहुत अच्छा कॉज है, पर उस अच्छे कॉज का क्या मतलब है? जाके होगा क्या? जाके मूवी देखेगा और उससे क्या होगा? कुछ गंदे इंप्रेशन से लेके आएगा और संसार में क्या करेगा? उत्पात मचाएगा। सेक्स एंड वायलेंस, दैट्स इट। व्हाट? एंड अभी ड्रग्स, राइट? मूवी हैज these three things to offer: sex, violence, drugs. So that's what those impressions we are ready to give those impressions. और सस्ता करो, टीवी चैनल्स को सस्ता करो, कपड़े सस्ते करो, मकान सस्ता करो, सब सस्ता करो। क्यों? ताकि हमारा इंद्रिय तृप्ति सुचारू रूप से चल सके, हम कम पैसे में और ऐश करें, है ना? तो ये इंद्र तृप्ति के लेवल पे ये सारा इजम्स, सारे मिशंस चल रहे हैं। बट व्हाट अबाउट गॉड? दैट नोबडी वांट्स। फ्री फूड चाहिए ना, वी आर गिविंग, संडे को आओ, राइट? फ्री एंटरटेनमेंट, फ्री म्यूजिक, फ्री फूड, फ्री पार्टी, वेरी वेरी इकोनॉमिकल क्लोथिंग, राइट? कितने का आता है परमेश रो? रिसेंटली मैंने खरीदा नहीं, मुझे बहुत सारे धोती कुर्ता गिफ्ट आए हुए हैं, मैं वही यूज कर रहा हूँ। हाँ, 250 रुपए का कुर्ता, 300 रुपए की धोती। वी डोंट नीड लेवाइस 3,000, 4,000, 5,000। हु नीड्स इट? राइट? सब कुछ अवेलेबल है, बट देन वी नॉट सेंस ग्रेटिफिकेशन इन सस्ता। दैट इज वाई द प्रॉब्लम। ओके, मिसप्लेस्ड कंपैशन। ठीक है, सो अर्जुना सेज लेट देम टेक दिस प्रॉपर्टी, आई डोंट वांट इट। बट कृष्णा सेज यू आर रनिंग अवे फ्रॉम योर ड्यूटी। दिस इज नॉट द राइट कंपैशन, अर्जुना। एक बार बेंगलोर में और मुंबई में देयर वाज अ न्यूज, पीपल, हाँ बेंगलोर, बेंगलोर में स्लम वाले लोगों को उठा के उनको 1 BHK के घर दिए गए, एक बनाया गया बिल्डिंग। क्यों? क्योंकि ये स्लम्स को भी हम पूरा, बेंगलोर इज नोन एज अ गार्डन सिटी, इफ यू डोंट नो। गार्डन, देयर आर लॉट ऑफ गार्डन्स। अभी देयर आर लॉट ऑफ ट्रैफिक ऑल्सो, सो गार्डन आर नॉट सीन। गार्डन जाने के लिए बहुत ट्रैफिक में घुसना पड़ता है, तो गार्डन नहीं जाते लोग। बट एक्चुअली आई वॉज ऑल्सो लिविंग इन बैंगलोर फॉर 2 years. Every 1 kilometer, 2 kilometers, some gardens are there. बहुत अच्छे से वैसे प्लान किया है, बट पॉपुलेशन हैज एक्सप्लोडेड सो मच दैट
The city has come to a standstill now. Anyway, so they wanted to make a garden. तो लोगों को इधर स्लम वाले लोगों को उठाया, फ्री में उनको मकान दिए, ये लैंड खाली करवाया, तो गार्डन में काम चालू करना था। उससे पहले देखा कि उधर फ्लैट्स में भी लोग रह रहे हैं और इधर स्लम में वापस लोग आ गए। जाके देखा तो ये कौन लोग हैं, तो ये वही लोग हैं जिनको घर दिए थे। तो पूछा भाई घर में कौन रह रहा है, बोले हमने किराएदार रखे हैं। हमने किराएदार रखे हैं। क्यों? सिर्फ फैसिलिटी दे दिया गया परंतु बुद्धि नहीं दी। नो अपलिफ्टमेंट इन द कॉन्शियसनेस. So if we don't uplift the consciousness, whatever place we give the human will make it dirty. So we have made this planet Earth a dirty place to live, and now we are looking for place in Mars and Moon. उधर जाएंगे, फिर उधर जाके क्या करेंगे? वही गंदगी वहां करेंगे. Right? That's what is going on. So now let's again come to this purport. Prabhupada says excessive attachment for material things puts a man in such a bewildering condition of existence. Excessive attachment. जब हमारा अपने इंद्रियों के तृप्ति के प्रति या भौतिक वस्तुओं के प्रति बहुत ज्यादा आसक्ति होती है, तो ऐसा विस्मय, बिविल्डरमेंट मतलब विच, हाँ कल भी बताया था प्रभु जी ने भी, हाँ विमोहित नहीं, विमोहित इल्यूजन, विचलन, विचलित होना, हमें से विचलित हो जाते हैं। जब एक्सेसिव अटैचमेंट हमारे हमें होता है। एग्जाम्पल, एक्सेसिव अटैचमेंट टू मटेरियल लाइफ और मटेरियल थिंग्स मेक्स मी bewildered and I do something wrong. Give me examples. Okay, yeah, yes, it's a very good example. कैकेयी का राम को वनवास देना. Yes, excessive attachment to my son getting throne. So then now the world may go to hell. My son should become the king. ठीक है, और उसके लिए she lost, I mean, her husband. She lost all respect. She lost even her son, because भरत महाराज also said कि नहीं, मेरा ऐसी माता से कोई वास्ता नहीं है, मैं तो भगवान राम का ही सेवक हूं. And he did not take the throne also, right? Of course, that's a leela. That's the pastime of the Lord. So we should not overanalyze Kaikeyi's activities. But yes, we can take this as an example. Excessive attachment. Any other example? Not power, lust. All good counsel was available to Ravan also. Vibhishan was telling, when Mandodari, his own wife, told that this one Sita you give up and everything will be fine. And if you commit this mistake, if you keep on, basically, if you are stubborn about keeping Sita, then everything will be destroyed. But Ravana's lust, huh? So excessive attachment, excessive lust. Okay. Any other? Okay. What is the excessive attachment? He should break the fast first. Attachment to the respect. If I have come to Ambrish Maharaj's home and he has not offered me something, I told that I am going to take a bath and I'll come back. The host should wait for the guest to have prasad first, and then the host should eat in the last. Right? Etiquette. And that is all the more with respect to the brahmanas and the gurus, rishis, right? तो लेकिन फास्ट ब्रेकिंग का टाइम जा रहा था, पारण टाइम एकादशी का, तो अम्बरीश महाराज ने चरणामृत लिया भगवान का, तो उसको बोल सकते हैं फास्ट ब्रेक भी किया और नहीं भी किया, क्योंकि निर्जल फास्ट था, तो चरणामृत से फास्ट ब्रेक कर सकते हैं, परंतु अन्न नहीं खाया वैसे कुछ, तो फास्ट नहीं भी ब्रेक हुआ, ऐसा ही बोल सकते हैं, तो ग्रे एरिया है वो. है ना? तो दुर्वासा मुनि गॉट एंग्री एंड ही
actually tried to kill Amrish Maharaj. Okay. Any other worldly example? Excessive attachment causes misdoings, wrongdoings. आजकल रियल वर्ल्ड में एक चीज मैंने देखी कि जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चा रोता है तो उसके हाथ में मोबाइल दे देते हैं। हाँ, यस, गुड एग्जांपल। टीवी चला के वो पेपर पे चला देते हैं। हाँ, इस चीज को अभी के लिए तो बच्चा शांत हो जाता है, लेकिन फिर आगे के लिए उसके लिए नुकसान होता है। in the longer term it is very bad for kids. Yes. बर्थडे में बुलाते हैं ना, खुद तो रोटी सब्जी खाएंगे, और बर्थडे में बुलाते तो पिज्जा मंगवाते हैं बाहर से, वो खिला देते हैं बच्चों को। मैं क्यों खिलाते हो? नहीं, बच्चे और कुछ खाते नहीं है क्या? अपने घर में नहीं खाते हो, अपने बच्चों को क्यों नहीं खिलाते हो? हाँ, in the name of party. पार्टी मतलब कोई पूरी सब्जी नहीं बनाता, नहीं खिलाता, तो पता नहीं। These days kids menu means pizza and burger and chow mein and noodles and Chinese. Okay. ठीक है, it can be made in a healthy way also, so actually it's fine if it is healthy, but hosting birthday parties in now weddings happening in the beer bar, can you believe? it is a संस्कार, विवाह संस्कार। वो संस्कार को मंदिर में होना चाहिए, गुरुजनों की उपस्थिति में होना चाहिए, ब्राह्मणों के वैष्णवों की उपस्थिति में हरिनाम के साथ में होना चाहिए, परंतु weddings happening in this way, namkaran happening, and so many sanskaras happening in the hotels, in the bars, and so on, and they will play so many games. पूरा मतलब चौपट है मामला पूरा। ओके, गणपति फंक्शंस, अटैचमेंट। ओके, थोड़ा सा हम डाइग्रेस हो रहे हैं। अटैचमेंट, हाँ हाँ, excessive attachment to the sports or the cricket makes us skip office, skip the normal routine of life. हमारा वर्ल्ड कप जब चल रहा था तो हमारे संडे फीस्ट में नंबर कम हो गया था। क्लास में, मैडम, वी हैव टू थिंक so many times for keeping class at the time of World Cup, or that too World Cup all India matches were on the weekend this time, purposefully, right? Because TRP बढ़ेगा तो एडवर्टीजमेंट का कॉस्ट, मतलब वो भी ये प्रॉफिट ज्यादा होगा। Anyway, there was one case which came in the newspapers that one lady had an extramarital affair. Extramarital affair, and there was like so strong an affair, and the husband used to maybe work outside or maybe in army or something. Husband was outside, and this lady has a grown-up son, and the son comes to know about it. Okay, and then the son chastises the mother. This is not a right way to deal, right way to behave. You should not do this. Okay, but the lady is so attached to this other person that they schemed and they killed the lady's son. And who gave the advice to kill this boy? The lady herself. And then they were caught after killing. Excessive attachment to the material life or my sense gratification makes me do something wrong. क्या करें क्या ना करें, है ना? ये मुश्किल आती है सबकी लाइफ में। चूजिंग बिटवीन, सी, भगवत गीता, the science of Bhagavad Gita teaches us. That's why the principles, the our alignment, our orientation towards Krishna, how important it is. Because choosing between right and wrong is very easy in life. Anybody can say, सिगरेट पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए? नहीं पीना चाहिए। चाय पीनी चाहिए कि नहीं पीनी चाहिए? नहीं पीनी चाहिए। नहीं, इसमें कोई ग्रे एरिया नहीं है उसमें। चाय नहीं पीनी चाहिए क्योंकि क्योंकि वो सिगरेट ही है ना? सिगरेट की फॉर्म में नहीं है, पर सिगरेट ही है। नशा मुक्ति अभियान,
हाँ, इस्कॉन का नशा मुक्ति अभियान में चाय भी आता है। ओ, वेयर इज ज्ञानेंद्र प्रभु टुडे? ही इज नॉट वेल? ओके, आई मीन बहुत ज्यादा हो रहा है। ओके, सो और कौन कौन मिसिंग है आज? विशाल प्रभु माता जी, दे हैव गॉन टू अटेंड अ वेडिंग। हाँ, हाँ, सो कहाँ थे हम? नशा मुक्ति अभियान पे थे। तो राइट एंड रॉन्ग है ना, चूजिंग बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। स्कूल जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए, राइट, राइट। However, choosing between right and right is very difficult. Now, which right to choose? And that is the dilemma Arjuna is facing right now. Now, should I fight for the kingdom, which is just a piece of land ultimately? So should I, or should I leave my, not fight and don't kill? Right? This is the bewilderment Arjuna is going through. And this bewilderment will come into our life also. Time and again, this will come. बच्चे का एग्जाम है, प्रोग्राम में जाऊं क्या? वेरी क्लासिक केस इन अवर प्रोग्राम। है ना? आई विल नॉट आंसर इट, यू आंसर इट। है ना? बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज गोइंग ऑन, है ना? शुड आई हिट द स्ट्रीट और नॉट हिट द स्ट्रीट? देर आर 100 गुड रीजंस of not hitting the street also, right? But what do we do? Choosing between right and right. And that's the framework Krishna gives. There is a framework Krishna gives, and then chooses and then allows Arjuna to choose. Arjuna, ये framework है, now you decide, है ना? निमित्त मात्रेण भव सव्यसाची, Krishna says, become my instrument, and then you choose what do you want to do. ठीक है? Krishna doesn't force. Krishna doesn't force us also, right? So family, and we'll end with this. It's almost 12 now. See, it is important to understand. Now, Arjuna is attached to family, but the attachment to family is right or wrong? Is it wrong? I mean, having affection towards family members, is it wrong? It is required. Then what should we do? What to do? How do we decide? What is your advice to Arjuna? If Krishna brings, or gives a lifeline to Arjuna, phone a friend, and then Arjuna calls you, मैं बैठा हूँ हॉट सीट पे, हॉट सीट ही थी वो। And then so many symptoms and so many emotions Arjuna is going through. Actually, we are laughing right now, but please understand what Arjuna is going through. He's saying, again, see, my body is trembling, my hair is standing on end, my bow Gandiva is slipping from my hands, my hand, and my skin is burning. हुआ है कभी को ऐसा किसी को इस यहाँ पे? These are the classic symptoms of tremendous stress. If you go to psychiatrists and psychologists, they will tell. स्ट्रेस जब होता है ना, बहुत अधिक डिप्रेशन और स्ट्रेस जब होता है, उसके बाद में व्यक्ति सिर्फ सुइसाइड करता है और उसको कुछ नहीं समझ में आता इससे छुटकारा पाने का। ये प्री सुइसाइडल सिम्टम्स है ये, है ना? द वर्ल्ड हैज कम टू एन एंड फॉर अर्जुना. Bow Gandiva slipping from Arjuna's hand. Do you understand the gravity of it? Gandiva bow. Okay, I'll tell you Mahabharata story to explain this, the gravity. Huh? Arjuna had taken a vow that if somebody ever asks me to put down the Gandiva bow, even jokingly, कि रख दो अपना धनुष गांडीव, I will kill that person. ये क्षत्रिय अर्जुन का ये एक वाव था, एक सौगंध थी. So what happens in Mahabharata war one time that so war is going on and Karna and Yudhishthira Maharaj is facing Karna in the war, and Karna gives such a tough time to Yudhishthira Maharaj
that the charioteer of Yudhishthira Maharaj, he actually, in order to save Yudhishthira Maharaj, he gets him out of the battle. ठीक है, otherwise Karna would have killed Yudhishthira Maharaj. Such a fierce battle, इतना tough time दिया. And then uh, Arjuna comes to know about it later, and he's busy fighting other fighters, but he comes to know about it. Then he tells Krishna that, you please take my chariot to the Yudhishthira Maharaj. How is he? What happened? Let me see how is he doing. So Krishna takes him to the camp during the war. So Yudhishthira Maharaj looks at Arjuna and he becomes very happy. Arjuna, my dear brother, you have come. I am sure you must have killed that rascal Karna. He gave such a tough time to me. So, I'm sure that you would have taken care of him. Arjuna said, no, actually, I just came to, see you. How are you and whether you are all right? तो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं, ओ, इतना दुख होता है उनको, you did not kill Karna. What is the use of your life? What is the use of your Gandiva bow in your hands? Just throw it away. It is of no use. ऐसा करके युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन को बोल दिया, ये महाभारत के टाइम पे. अभी अर्जुन becomes bewildered. अभी मैं क्या करूं? I have taken a vow. तो कृष्ण को बोलते हैं, अभी मेरे को मारना पड़ेगा युधिष्ठिर महाराज को. कृष्ण बोलता है, अरे रुक, क्या कर रहा है? ये किसके लिए युद्ध कर रहे हैं? युधिष्ठिर महाराज इज अवर किंग. ही हैज टू हैंडल द, ही हैज टू टेक द थ्रोन. इसके लिए लेके आया क्या मैं तुमको इधर? हाँ. तो अर्जुन को कंसल्ट करते हैं कृष्ण. हाँ. बिकॉज अर्जुन इज, अभी मुझे मारना पड़ेगा. आई विल किल यू माय ब्रदर. ही डिक्लेयर्स दैट नाउ आई हैव टू किल यू. यू टोल्ड दिस टू मी. So then Krishna says that, hey, Arjuna, insulting a superior is as good as killing him. ठीक है? तो you insult युधिष्ठिर महाराज. So अभी अर्जुन शुरू होते हैं फिर. और उसके बाद में जो सुनाया युधिष्ठिर महाराज को, जो सुनाया, बचपन से लेके अभी तक का पूरा भड़ास निकाल दिया. Because his four brothers were very obedient to Yudhishthira Maharaj. Right or wrong, if Yudhishthira Maharaj has said something, they would follow. Right? लेकिन at times Yudhishthira Maharaj made wrong decisions also. And brothers knew it, right? But they nevertheless followed him. At this time अर्जुन ने सब बोल दिया. हो ये क्या ऐसा करते हैं क्या कोई? तुम धर्मराज बनते हो, तुमने ये किया, वो किया, ऐसा किया, वैसा, तुम्हारा यहाँ जुआ खेला, ऐसे ऐसे तुमने सौगंध वाव लेके रखी हैं, जुआ खेलना पड़ा, क्या क्या सहना पड़ा, 13 साल वन में रहे, अज्ञातवास में रहे, कितना, और अभी ये युद्ध हो रहा है इतना. तो युधिष्ठिर महाराज को इतना अपमानित किया, इतना अपमानित किया कि युधिष्ठिर महाराज ऐसे डिप्रेशन में चले गए और बोलते हैं, मेरे छोटे भाई ने मुझे ऐसा बोला, मेरे जीवन का कोई कोई फायदा नहीं है, अभी मैं जा रहा हूँ सुसाइड करने. कृष्णा बोल रहे हैं, रुको. हाँ, कि ये एक को समझाओ, दूसरा बिगड़ जाता है. हाँ, तो फिर उनको रोका, उनको समझाया. तो ऐसे करके, सी, कृष्णा would not have been there in this Pandavas party. It would have been difficult, right? ऐसे फिर दोनों को समझाया, फिर दोनों को वापस युद्ध करने भेजा. Okay, so that is the gravity of Gandiva bow slipping from Arjuna's hands. Okay, that is the stress Arjuna is going through. In this stress, phone a friend. Arjuna calls Piyush Prabhu. Please help me. What should I do? What would you consult? What consultation will you give to Arjuna, which is practical? That is the role Krishna is playing. है ना? कृष्ण का छोटा मोटा रोल है क्या? सारथी है, ठीक है, 1-1.5 घंटा भगवत गीता बोल दिया, क्या बड़ी बात हो गई? करो इसको कंसल्ट. So see, affection towards family is not a problem. It has to be there, otherwise family will not function. है ना? Love has to be there in the family. But वो अधर्म कर रहे थे. Okay. Okay. So
So family, I am soul. So what would you consult Arjuna? That you are the soul and they are also the souls. हाँ. ये फाइट कर रहे थे तो अपना जो विचलित हो रहे थे वो बॉडी लेवल पे हो रहे थे उनका आसक्ति को देख रहे थे कि मेरे फैमिली है मेरा रिलेटिव्स है उनको मानिए वो आसक्ति उनको ये घेर रहा था इस माया का प्रभाव ज्यादा था और वो उनको तो सॉल्यूशन क्या है अर्जुन को क्या करने को बोलेंगे तो देश क्या उद्देश्य है सामने खड़े उनसे ही पूछ लो सामने अच्छा तो फोन फ्रेंड बोलेगा अमिताभ बच्चन से ही पूछ लो उसको ही सारे आंसर पता है उनके सामने लिखे हुए हाँ? Okay. Family. See, family is coming in the way. So what should you do? केवल ऐसी बात नहीं थी कि इंसल्ट हुआ उनकी वाइफ का सिर्फ किंगडम वाली भी बात नहीं क्योंकि इन सब के लिए प्रपोजल लेके श्री कृष्ण गए थे लेकिन वही चाहते थे युद्ध होना ठीक है ना युद्ध सी कृष्णा वांट्स द वॉर टू हैपन ठीक है मान लिया परंतु फैमिली बीच में आ रही है तो ये गलत है क्या गलत कैसे है इट इज नेचुरल फॉर अ ह्यूमन बीइंग टू एग्जिबिट इमोशंस टुवर्ड्स हिज फैमिली व्हाई इज इट रॉन्ग इन व्हाट केस इट इज रॉन्ग वन व्हाट केस इट इज राइट युद्ध नहीं करते तो और अधर्म होता ही रहता और तो वो भी एक पॉइंट ये इनको छोड़ भी दोगे तो ये ऐसा नहीं है कि आज तो ये और दूसरों को नुकसान पहुंचाते ही रहेंगे See, the simple example is simple way to understand is I have a car. What is the purpose of the car? Go to office, go to temple, one place to another. It has a purpose. Okay. But if the car becomes a problem and car doesn't allow me to go to office, what do? You keep sitting in the car? And the car में पेट्रोल खत्म हो गया या पंक्चर हो गया तो अभी क्या करेंगे कार में बैठे रहेंगे अभी ऑफिस जाएगी तो जाएगी नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी पर कार तो कार है वो तो मेरी कार है अहम कार है ना so what do we either rectify it or we leave the car and catch a cab catch a bus or a train and we go I can't keep sitting in the car similarly the arrangement of family and the job and everything and it actually this is for everything it's for job it's for whatever facility we have in our life right if this family is allowing me is helping me to become Krishna conscious then it is good otherwise समझाओ so somebody asked this question to Jayadeva Swami Maharaj Jayadeva Swami Maharaj very elderly disciple now abhi very elderly person devotee वो आए थे BCEC में 2-3 months ago right you were there we served juice to them है ना वो कप मेरे पास अभी भी है उनका डिस्पोजेबल कप जिनसे उन्होंने ये जूस पिया था कोकम जूस एनीवे ही इज नोन टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड वेरी डिजिट इन हिज आंसर्स तो उनको पूछा था जयदेव स्वामी महाराज को किसी ने क्लास में इधर नहीं पहले कि महाराज माय फैमिली इज ट्रबलिंग मी आई एम नॉट एबल टू प्रैक्टिस कृष्णा कॉन्शियसनेस मेरे पेरेंट्स मना कर रहे हैं और भाई बहन ये है झगड़े हो रहे हैं एंड दिस एंड दैट एंड सो तो जयदेव महाराज ने सुना थोड़ी देर तक तो महाराज व्हाट शुड आई डू महाराज सेज किल देम this devotee is bewildered Maharaj what are you saying Maharaj that's what Krishna told to Arjuna kill them okay so no in ISKCON we don't teach people how to murder and all but the point is
See, if my sister ties Rakhi to me, I'm tying the Rakhi to you, huh? We are brothers, sisters. We have a responsibility for towards each other. So here's the Rakhi, but the condition is you have to stop chanting Hare Krishna from tomorrow. तो क्या करना चाहिए? हाँ, दिस इज द टाइम सिस्टर को बोलो धन्यवाद. I will not stop chanting Hare Krishna. You are my sister in this life. In previous life, somebody else was there. In next life, somebody else will be there. ठीक है? Why should there be a condition like that? Right? I can fulfill my role of a brother while chanting Hare Krishna also. I fulfill my role of a husband or a wife or a son or a daughter or a son-in-law or a daughter-in-law or an employee, right? Sometimes when bosses come to know about our Krishna consciousness, they become fanatic. कि नहीं नहीं अभी ना इसको, और ये मतलब all these are Hindu people, so called Hindus. उनको पता चले, I've seen, I mean not with my personal language, a devotee friend's example, उसके बॉस को पता चला कि ये इस्कॉन जाता है, तो बराबर जब फेस्टिवल का दिन होता है तभी उसको बुलाता है, जब यात्रा का टाइम आता है तभी उसको ऐसा असाइनमेंट देता है. He will not approve his leaves for the yatra, not approve his leaves for the festival days. So then उसको मारना पड़ेगा, kill them, है ना? So relationships, affection is not a problem. The problem is if they are coming in the way of Krishna consciousness. Right? Now we also have to play our part in giving good reasons to our family and friends and relatives and employers or whatever, that they don't take our Krishna consciousness in a negative way. We give them good examples. We set good examples in front of them that they appreciate our Krishna consciousness. Right? That we have to do. But even after doing everything, यदि आपने हमारी शादी में लहसुन प्याज वाला खाना नहीं खाया, तो फिर हमारा रिश्ता कोई फायदा ही नहीं, तो हमारा, है ना? तो ये तो कोई पॉइंट नहीं हुआ. राइट? आई हैव बीन गोइंग टू माय फैमिली वेडिंग्स so many times, so many last one decade, 15 years, so many marriage weddings have happened. We have never eaten there, but we go, we cook, offer in home, eat and then go, spend full time with them. पूरा रात भी निकालना पड़ता है कभी कभी, नाचते गाते फोटो खिंचाते. But I am here for a relationship, for the relationship. I respect and love this person, but it doesn't mean कि मेरे को ये खाना ही पड़ेगा. Right? ऐसा condition है, I would not go. Then I would also say कि ठीक है, if you don't respect me as a person, not love me as a person, then what's the point? Right? Especially, so that's why when devotees take Kantimala, we ask them that what will you do when you go home in vacation? What will you do when you go for weddings or birthday parties? Everybody says, nahi, we will be firm, we will not eat there, we will not eat anything which is not offered to Krishna. Then I qualify for Kantimala, Tulsi Mala. Right? नहीं तो नॉर्थ इंडिया में बहुत ऐसा प्रैक्टिस है कि कंठीमाला पहना है, किसी घर पे गए, चाय आई तो कंठीमाला खोली, पर्स में डाली, चाय पी ली और बाद में वापस कंठीमाला पहन ली, है ना? ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं. एंड देन वैसे ये इस्कॉन वाले रूल बहुत लगाते हैं, इतना नियम इतना कठोर क्यों होना चाहिए? ये क्या कठोरता थोड़ी, दिस इज सिंपली आवर आवर dedication, this simply our commitment toward Krishna. Right? I have worn an engagement ring, है ना? तो ऐसा करूंगा, मैं ट्रेन में कोई युवती बैठी है तो एंगेजमेंट रिंग निकाल के जेब में डाल लूंगा और मैं उससे बतिया लूंगा और जब उतरूंगा तो वापस एंगेजमेंट रिंग पहन लूंगा. ऐसा थोड़ी होता है. I mean, there's a relationship between Krishna and myself. There is a commitment, and this is a sign of this commitment. Right? So that relationship doesn't die.
right? ऐसा, just for my sense gratification I start behaving like this. So Manas is getting restless. He is sleepy, है ना? Okay, अरे खिलाओ ना उसको, ठीक है? So let's end here. Family affection should not come in the practice of KC. मेरी वाइफ ने बोला है कि प्रोग्राम में नहीं जाना है तो मैं नहीं आ सकता, नहीं, वाइफ को लेके आओ। ठीक है? और मे बी वंस इन अ वाइल कुछ इंपॉर्टेंट काम हो सकता है घर का वगैरह, ठीक है, कभी कभी हमको छोड़ना पड़ता है, बट देन इट हैज टू बी जेन्युइन, एंड कृष्णा नोज व्हाट इज जेन्युइन व्हाट इज नॉट, ही इज सिटिंग इन द हार्ट। ठीक है? सो लेट्स एंड हियर। थैंक यू वेरी मच। श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।